Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us today, our session on the internal audit practices and challenges in the textile industry. It is basically a series of session जिसमें हम multiple industries को touch कर रहे होंगे. We will be having an expert on our board जो कि उस industry में many years of experience, leadership experience होगा. तो it would be a learning opportunity for the audience. A brief introduction about myself. My name is Umair. I'm a qualified chartered accountant working in the internal audit industry for about more than 15 years at the senior leadership roles. Uh, so I have launched Excelian Audit Academy as a learning platform for the internal audit community. जिसमें हम multiple courses कराते हैं process auditing के, data analytics के और different internal audit methodologies, report writing, different things. हैं. We have CIA class sessions as well upcoming from 1st August. तो वो सारी activities हैं. So this is part of the learning series. So we have guest on board, Mahmood Saab. He is a qualified internal auditor, CIA, MBA. वो अपना introduction देंगे. So the purpose and objective of this session के बहुत सारे लोग internal audit industry में specific किसी इंडस्ट्री में होते हैं तो वो उनकी ग्रास रूट की इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती. एंड दिस सेशन विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब फॉर द फ्यूचर कम्युनिटी मेंबर्स के जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यूज प्रिपेयर करना चाहते हैं. तो इसके रिस्क, चैलेंजेस, फोकस एरियाज, आइदर इस इंडस्ट्री में जाना है, नहीं जाना, किस तरह ग्रो करना है, तो ये एस्पेक्ट भी हम कवर कर रहे होंगे. तो ओवर टू यू महमूद साहब. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर आवर टुडेज सेशन. आप अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दें, देन वी विल स्टार्ट. जी. Okay, thank you, Umair. Pleasure to be here. Okay. So can you hear me, Umair? क्या थोड़ी Okay, thank you. डिस्टॉर्शन थी. नाउ इट्स बेटर. Acha, the name is Mahmood Anwar. I'm currently working as a general manager internal audit of Yunus Textile Mill, Lucky Group. Prior to that, I was the head of audit for Surti Textile Mills. Umair, can you hear me? डिस्टॉर्शन है वॉइस में. इंटरनेट कनेक्टिविटी का आई गेस थोड़ा इशू है. वी ट्राई इट अगेन. आप थोड़ा दोबारा से स्टार्ट कर दें. वो वॉइस सही नहीं आ रही थी आपकी. Okay, ठीक है. Can you hear me now? नाउ इट्स बेटर. Okay, ठीक है. Thank you. Okay, so as I was introducing myself, so I'm currently working as a general manager internal audit for Yunus Textile Mills. And prior to that, I was working in Surti as the head of audit for the denim division. Within the denim division, I was looking at now Nuriabad and Landi, both units, and a spinning unit at Nuriabad prior to that. So I have experience in both the home textile and the denim industry, which are the key drivers of textile in Pakistan. And prior to that, most of my experience has been in the FMCG sector, especially food manufacturing and distribution. So textile is still a very good experience for me, and it is a very challenging field. So क्या कहते हैं, this is more or less the professional part. Total 18 years of experience, and in the recent past has been in textile industry. ओके, ग्रेट महमूद साहब. थैंक यू फॉर द Anything वंडरफुल else, Umair? इंट्रोडक्शन. जी जी, इट्स डन. तो हमारे टॉपिक पे आते हैं. सो सबसे पहला सवाल, एज यू वर बीइंग इन द एफएमसीजी सेक्टर एंड नाउ यू आर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और आप काफी सालों से हैं इसमें, तो व्हाट डिफरेंस यू फाउंड इन द अदर इंडस्ट्रीज एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज in terms of internal audit? Okay, fair enough. Okay, okay. So first of all, we have to understand that textile industry is huge. ठीक है, it is 60% of the total export done by Pakistan. So the volume is too much. यानी कि there's no comparison with FMCG. Within that, there are several reports के टेक्सटाइल के हालात इतने अच्छे नहीं हैं,
और डिफरेंट खबर आती रहती है। और फिर एक टेक इंडस्ट्री की भी हाइप जनरेट हुई है पिछले 5 सालों में। खासतौर टेक का इस वक्त जो भी साइज है दैट इज वेरी लिमिटेड, मे बी शायद $3 to $4 billion। तो ये कि इट इज वेरी ह्यूज इंडस्ट्री, प्रोसेसेस फ्रॉम स्पिनिंग टिल गारमेंट्स। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस लेके बैठी हैं, देर ओनली स्पिनिंग ओरिएंटेड, सिर्फ वीविंग का काम कर रही हैं या सिर्फ गारमेंट्स या स्टिचिंग कर रही हैं। और फिर कुछ ग्रुप्स हैं जैसे लकी टेक्सटाइल हो गया, यूनस टेक्सटाइल हो गया, सूरती हो गया, आर्टिस्टिक मिलेनर हो गया। कुछ ग्रुप्स हैं जो कि एंड टू एंड इंटीग्रेटेड हैं, तो वो स्पिनिंग से लेकर आखिर गारमेंट्स तक सब कुछ बना रहे होते हैं। तो इस तरह से जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्रोसेस के ऊपर ऑफ कोर्स बहुत सारी ओवरहेड्स, बहुत सारी वेस्टेजेस, बहुत सारी चीजें लिंक्ड हैं। तो प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस होल डिस्कशन। थर्ड एक चीज जो मैं महसूस करता हूँ पर्सनली कि ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है टेक्सटाइल में, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव। और यानी कि एज कम्पेयर टू एन एफएमसीजी बहुत बड़ा डिफरेंस है। यानी कि जो बड़े टेक्सटाइल हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, मल्टीपल शिफ्ट्स काम कर रही हैं, बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। एंड दिस इज कंसिस्टेंट अक्रॉस सिमिलर कंट्रीज, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, सब में आपको जो है वो लेबर इंटेंसिटी नजर आएगी। जहां मैकेनाइजेशन ऑटोमेशन ज्यादा है वहां पे कदरें कम नजर आएगी, बट इट इज अ ह्यूज रिसोर्स रिक्वायरमेंट जिस पे इंडस्ट्री चल रही होती है। Great, great. Thank you for the insight. So the key difference अ, is FMCG हम्म, में obviously एक वॉल्यूम तो होता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम एक्सटेंडेड होता है। जाहिर है वो इतनी ज्यादा उनकी, अगर हम हेड काउंट भी देखें तो, अगर हम फाइनेंशियल देखें तो ठीक थाउजेंड्स ऑफ हेड काउंट होते हैं, जबकि एफएमसीजी में 1,000 1,500 एम्प्लॉयज होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट मिला के। जबकि ठीक टेक्सटाइल में 5,000 6,000 तक भी जाते हैं लोग हेड काउंट, क्योंकि काफी सारे यूनिट्स होते जी, हैं। बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल में बिल्कुल। फरोज 1888 है, बड़ा ग्रुप है, सूरती है जिसमें आप काम कर चुके हैं, और एग्जिस्टिंग आपका यूनिस है। ये बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। तो दैट्स अ जी ग्रेट एस्पेक्ट। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज एन ऑडिटर अगर आप देखें, इंटरनल ऑडिटर लीडरशिप पे आप बैठ के देखते हैं, तो एज अ होलिस्टिक व्यू फॉर जनरल ऑडियंस के आपको टॉप रिस्क जो है जिसको ऑडिटर को फोकस करना चाहिए, जो जो उसकी हम्म, नजर में होना चाहिए, तो टॉप रिस्क बिजनेसेस को क्या है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो? ठीक है। अच्छा देखें, आई फील दैट देयर आर थ्री रिस्क्स। द फर्स्ट इज ग्लोबल मार्केट्स वॉलेटिलिटी एंड कंपटीशन। तो टेक्सटाइल के लिए दिस इज एवर इम्पोर्टेंट। ठीक है, हम जिस रीजन में काम कर रहे हैं, हमारे साथ वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, ये सब सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा, इन सब की जो गवर्नमेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव हैं। हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्टिव रही है, स्पेशली फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। लेकिन रिसेंटली कुछ आईएमएफ की वजह से जो चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से हमारा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और हमारे लिए सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जो छोटे ग्रुप्स हैं, जो इतने वर्टिकल इंटीग्रेटेड नहीं है, जो एक यूनिट लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा स्क्वीज या प्रेशर आ जाता है, तो उनकी सस्टेनेबिलिटी बिकम्स क्रिटिकल। और जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके लिए रिलेटिवली इजी है, बट इट्स स्टिल नॉट दैट इजी टू सस्टेन। देखिए, सिंपल सी बात है कि थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स लिंक्ड हैं, तो अगर एक यूनिट भी बंद होता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स का इम्पैक्ट है जो कि इंडस्ट्री को बर्दाश्त करना है। अच्छा, वो सारे फॉरन उनको जॉब्स तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो वॉट एवर हैपन्स टू पाकिस्तान, वो सारी हमारी इंडस्ट्री पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, वेदर इट इज इन कराची, इट इज इन फैसलाबाद और इट इज इन लाहौर, सब पे उसका इम्पैक्ट होता है। और इसी तरह से अगर आप देखें, जैसे ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी की बात करें, तो कॉटन की हमारी पिछले 5 साल में जो ग्रोथ है दैट हैज बीन सिवियरली डिप्लीटेड। उसकी वजह से हम लोग यूएस, ब्राजील, बहुत सारी जगहों से कॉटन मंगा रहे हैं। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि एक चीज लोकली ग्रोन है, उसकी प्राइस फैक्टर और एक इम्पोर्टेड चीज के प्राइस फैक्टर में जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्वियसली, बिल्कुल बट सही। बहुत जगहों पे बाय रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो इसलिए आपको वो चीज मंगानी पड़ती है और आपको दैट बिकम्स एन इनपुट फॉर यू। उस पर जो ड्यूटीज वगैरह जो भी आपको पे करनी होती है, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। इसी तरह दूसरी बहुत बड़ा मैं रिस्क कहूंगा, दैट इज द एनर्जी क्राइसिस। अब हम ये बात समझते हैं कि फॉर द लास्ट 5 ईयर्स हमारा जो पावर सेक्टर है उसका उसकी सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड मुख्तलिफ जो रिजीम्स आती हैं, गवर्नमेंट्स आती हैं, वो उससे स्ट्रगल कर रही हैं। कोई स्पेसिफिक इस वक्त जो है ना सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, इंडस्ट्री भी पार्ट ऑफ द सेम साइकिल है। अब देर वॉज अ टाइम के जो गैस और एनर्जी के बिल्स थे, खासतौर पे गैस के, वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुए विद इन 12 to 18 months। अब क्या है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री विद इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वन इज जिसका एक एक्सपोर्ट फोकस है,
तो वो गुड्स सिर्फ इसलिए बना रही है कि बाहर उसको बेचना है। मेनली बिल्कुल जो सही। मार्केट्स हमारे पास हैं वो है यूरोप और यूएसए। ठीक, इन दो जगहों पे हमें माल भेजने हैं। दोनों बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं और बहुत मुश्किल से वहां पे ना बायर्स के अंदर आप जो है ना आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। तो एनर्जी क्राइसिस जहां पे खासतौर पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का की इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर आप 50% कॉस्ट भी बढ़ाते हो तो ये कॉस्ट आप पास ऑन नहीं कर सकते बायर को, क्योंकि बायर बिल्कुल कह सही। रहे हैं कि जी अगर आपके मुल्क में मसला है तो मैं चाइना चले जाऊंगा, मैं इंडिया चले जाऊंगा, मैं बांग्लादेश चला जाऊंगा। तो इट्स ही इज नॉट कंस्ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, आपसे बिजनेस रिलेशनशिप है 19-20 आपसे डिस्कस करेगा, मगर इफ देयर इज ह्यूज इम्पैक्ट तो वो सारा कंपनी को खुद ही बर्दाश्त करना है। सो देयर इज नो ऑप्शन फॉर अस। ओके, तो एनर्जी क्राइसिस समथिंग उसकी वजह से सोलर तो एक बहुत इनके हैंगिंग लो हैंगिंग फ्रूट था जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत पहले अडॉप्ट करना पड़ा। सोलर के साथ साथ विंड पावर हो गया और बायोमास हो गया, जहां जहां से पावर जनरेट कर सकते हैं। जो टॉप ग्रुप्स हैं इंक्लूड यूनिट, आर्टिस्टिक्स, सब ने हर तरह के पावर को इम्प्लीमेंट किया है बर्दाश्त कर सकें। अच्छा, इसमें एक और इम्पैक्ट भी है कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो सिर्फ रेट्स का नहीं है। जो मशीनरी हम यूटिलाइज करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, वो कंटिन्यूस रनिंग पे डिपेंड करती है। दे कैन नॉट फंक्शन ड्यू टू लोड शेडिंग। अगर कहीं भी लोड शेड होता है तो उसकी डिस्ट्रप्शन की वजह से आपकी वो पूरी प्रोसेसिंग साइकिल टूट जाएगी। तो उसकी वजह से जो आपका लॉस ऑफ प्रोडक्शन है वो उस प्रोसेस में जो हम्म। पड़ा हुआ है वो दैट इज गॉन। तो उसको बहुत रिड्यूस रेट पे एग्जैक्टली। स्क्रैप के तौर पे आपको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए एनर्जी क्राइसिस में कंटिन्यूटी ऑफ द एनर्जी सप्लाई चेन एंड द प्राइसिंग, बोथ फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज एक ये है जो कि मुझे महसूस हुई है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर स्पेशली, कि जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है हमारे पास टिपिकली जो ग्रेजुएट्स और जो चार्ट अकाउंटेंट्स और जो सीएमए सारे हैं, वो जो है ना माइग्रेट करते हैं या तो अब्रॉड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। रिमेनिंग विद इन पाकिस्तान उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एमएनसीज। ठीक है, टेक्सटाइल बिकॉज उसकी एक हिस्ट्री है, टेक्सटाइल में प्रीमियम टैलेंट नहीं आया। तो टेक्सटाइल के पास एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की, कि वो दे वेलकम दीज पीपल अ लॉट। उनके पास वो पोजीशंस हैं जो ये लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इज इम्पोर्टेंट, कि अगर हमें इसकी शक्ल बदलनी है इस इंडस्ट्री को, इसको जो वैल्यू एडिशन हम बात करते रहते हैं ना कि भाई हम वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अगर वो एग्जैक्टली। इन होगा तो आपकी प्रोडक्ट उस लेवल पे जाएगी कि आप दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से आप देखेंगे लास्ट 3 इयर्स जो है एमटीओ प्रोग्राम्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के तकरीबन सबने लॉन्च किए हैं, वो टॉप यूनिवर्सिटीज के पास जा रहे हैं। जी। वेल वेल जी एक्सप्लेन्ड उमर, आर यू सेइंग महमूद एनीथिंग? साहब। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो दिस इज फॉर द ऑडियंस टू नोट दैट कि वाइल बीइंग एन ऑडिटर आपको जो है सिर्फ ऑडिट की नॉलेज नहीं होनी है, आपको बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड दैट्स द विनिंग पार्ट एंड दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द सीईओज एंड द बोर्ड। आपको कोई हायर करते हैं लीडरशिप पे, तो आपको चैलेंजेस, कस्टमर्स, प्राइसिंग, ग्लोबल ज्योग्राफी, सारी चीजें, आपके कॉम्पिटिटर्स लोकल एंड इंटरनेशनल, ये सब चीजें ऑडिटर्स की नॉलेज में। किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि यार ये ऑडिटर्स के लिए क्या रेलेवेंस है, इतनी इन्होंने बातें बताई हैं। तो द रेलेवेंस इज दैट व्हेन यू आर डिस्कसिंग विद द सीनियर लीडरशिप, तो आपके बैकएंड पे हो कि जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हो दैट अलाइंस विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बीइंग एन इंटरनल ऑडिटर, इनके पास इंसाइट है कि व्हाट द challenges actually the business is facing. So इसको एक और स्टेप आगे जाएं कि जो 3 पॉइंट्स आपने बताए हैं इसमें, बीइंग एन इंटरनल जी ऑडिटर, हम क्या फोकस पॉइंट इंटरनल ऑडिट अपनी प्लानिंग में इसको हम शामिल कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज को हम फोकस कर सकते हैं ऑडिट के लिए? बिल्कुल ठीक है। देखें, एक सिंपल जो एस्पेक्ट है जो कि कंट्रोलेबल है, जिस पे हम इंटरनल ऑडिटर्स वैल्यू कर सकते हैं, दैट इज एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, अब इस बायोमास में देयर इज अ प्रोक्योरमेंट साइकिल। ठीक है, सो इंटरनल ऑडिटर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि बायोमास की प्रोक्योरमेंट में हमारे पास क्या कंट्रोल्स हैं, क्या उसकी सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज हैं हमारे पास, हमारी प्री ऑडिट साइकिल पेमेंट साइकिल के अंदर बायोमास को हम कैसे इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं, फिर बायोमास के ऊपर प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ठीक है,
तो और हाँ, ऐसा ना हो कि मोनोपलीज बिल्ड हो रही हो बायोमास की स्पेसिफिक सेगमेंट्स की, जिनकी वजह से हमारी बिजनेस सस्टेनेबिलिटी हर्ट हो रही हो। तो बायोमास इज वन एग्जांपल कि जैसे देखें, बात ये होती है कि आपके पास एक ऑडिट यूनिवर्स है, उस ऑडिट यूनिवर्स का कुछ पार्ट आपने अपने ऑडिट प्लान्स में रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं कि आपको यूटिलिटी का ऑडिट्स करना है, तो यूटिलिटी में बायोमास इज वन एग्जांपल जिसको आप रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह सोलर पावर जनरेशन, विंड मिल पावर जनरेशन है, उसकी साइकिल अंडरस्टैंड करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अंडरस्टैंड करना, उसमें फिर वैल्यू एडिशन ऐड करना, तो ये प्रोसेस ऑडिटिंग में ये चीज ऐड हो सकती है, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट की मैं बात कर रहा था, तो उसमें ह्यूमन टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज हैं, उनको प्रोसेस ऑडिटिंग में ऐड करना, और फिर वहां पे देखना कि हाउ आर वी सोर्सिंग द टैलेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बिजनेस। तो ये वो एरियाज हैं जो कि हमें अपनी ऑडिट यूनिवर्स में डालना है, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन वी नीड टू हैव इन आवर ऑडिट प्लान्स कि हम स्पेसिफिकली कैसे करेंगे। हर कंपनी का, हर ऑडिट फंक्शन का अलग आउटलुक होता है, बट दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू लुक ऑन, और जो मैनेजमेंट की कंसर्न है, द मैनेजमेंट वांट्स टू हैव एश्योरेंस ऑन दीज एरियाज, तो हम जितनी भी एश्योरेंस देते हैं दैट इज वैल्यूएबल फॉर द मैनेजमेंट। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, एक मिथ कह लें, मिसकंसेप्शन कह लें, जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कही जाती है, वो जो लोग हैं वो भी इसको कन्फर्म करेंगे कि प्री ऑडिट्स बहुत होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, स्टॉक काउंट्स करवाते रहते हैं। तो डू यू थिंक इज इट नेसेसरी, इज इट एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस, या रिक्वायर्ड है नहीं है, इज अ गुड प्रैक्टिस और नॉट? इसके बारे में थोड़ी आप रियलिटी बताएं। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है जो कि मैंने पर्सनली अपने आप से बहुत दफ़ा पूछा है, बिकॉज बीइंग सी आई ए, आई क्वालिफाइड इन 2011। तो जिन इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, तो दिस वाज अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी। और इसमें एक कंसर्न ही होती थी इंडिपेंडेंस की। हम सब ये बात जानते हैं कि बिकॉज ऑफ द प्री ऑडिट साइकिल, इंडिपेंडेंस हमारी किसी हद तक एम्पेयर होती है। ओके। तो मेरे जहन में एक ख्याल आया, बिकॉज हम, दरअसल में वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। अब एग्जांपल ये कि एक जो है ना, आईए पल्स का एक वो आता है, इंटरनल ऑडिट पल्स का एक मैगजीन आता है विच इज एनुअल, आईए यूएसए की तरफ से आता है। अच्छा, उसको मैंने ऐसे, आई वाज स्टडीइंग इट, दिस हैपेंड अराउंड अ ईयर अगो, 2025 का जो वर्जन आया था, मैंने ऐसे खोल के देखा, उसमें लिखा हुआ था, यू वुड बी सरप्राइज टू नो, हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा हम फोकस करते हैं, अपने बोर्ड से लड़ते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चैंपियन करते हैं कि द ऑडिट शुड रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली टू द सीईओ एंड फंक्शनली टू द बोर्ड ऑडिट कमिटी। दिस इज समथिंग दैट वी इंटरेस्टिंग। फाइट फॉर, हमारे करियर्स भी इसमें इम्पैक्ट होता है, सब कुछ होता है। अच्छा, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट इन यूएस, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एज अ रोल मॉडल लेते हैं, वहां पे 72 till 79% ऑफ द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स रिपोर्ट टू द सीएफओ। जब पहली दफा मैंने पढ़ा ना, तो मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मैंने कहा कि भाई, ये स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया को बताते हैं, और अपने मुल्क में इनके ज्यादातर लोग सीएफओ के ताबे हैं। तो ऐसे ही फिर है। ये हमें क्या डायरेक्शन दे रहे हैं? ये दिस इज बाय द वे, मैंने आज सुबह भी, ये एक फैक्ट था जो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, आज सुबह मैंने खोल के वो मैगजीन देखा। आप इंटरनल ऑडिट पल्स के नाम से सर्च कर लें, उसके पेज 4 या 5 पे रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लिखी है। अच्छा, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दिस इज मोस्टली फॉर प्राइवेटली हेल्ड एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। उनके यहाँ हेल्थ में, पब्लिक पब्लिक यानी कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां पे जो है ना थोड़ा डिफरेंट है, कि वहां पे रिलायंस कम है, और वहां पे वो रिपोर्टिंग वही स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली टू सीईओ एंड फंक्शनली टू द बोर्ड। अब इस सूरत हाल में आप अपने सेठ को इग्नोर करते हैं, या अपने बिजनेस ओनर को इग्नोर करते हैं, आप उसको अगर स्टैंडर्ड दिखाएंगे, वो कहेगा अमेरिका में आपको पता है क्या हो रहा है, तो आप तो यहीं पे फंस जाएंगे। अच्छा, प्री ऑडिट कल्चर इज समथिंग कि मैं ये समझता हूँ, मैं पर्सनली आई वाज वेरी एंटी प्री ऑडिट। फिर मैं टेक्सटाइल में एक वक्त काम किया, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ये हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है कि देखिए, वी हैव अ वेरी ह्यूज प्रोसेस एक्टिविटी, हम करी प्रोसेस रहे हैं, हम स्पिनिंग से लेकर गारमेंट्स तक सिर्फ प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं, चाहे वो स्पिनिंग, चाहे वीविंग हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे स्टिचिंग हो, चाहे गारमेंट्स हो। अच्छा, अब वो प्रोसेस एक दफा हो गई ना, तो बात खत्म हो गई। अब आप उसके बाद एक प्रोसेस ऑडिट करें, मे बी 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स डाउन द लाइन, और आप उसमें मसले निकाले, तो जो होना था हो चुका है। अगर ऑडिटिंग उस वक्त इन्वॉल्व होके उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करके, रेक्टिफाई करके, उसका रूट कॉज एनालिसिस करके कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकता है, तो ऑडिट ने अपना काम किया। तो प्री ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंपल सी बात है, द बिजनेस ओनर सेठ, जिसको हम कहते हैं हम हमारी अपनी लैंग्वेज में, सेठ का अरबों रुपए का कारोबार है हर महीने। डू यू रीड मी उमेर? जी, डू यू रीड मी उमेर?
जी, आई कैन लिसन यू। ओके ओके ठीक, आई थिंक इट वाज म्यूटेड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो सेठ है उसका अरबों का कारोबार है हर महीने। ठीक है, आप उस उन अरबों रुपए के ऊपर अगर एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आप किस चीज पे कर रहे हो? ठीक है, तो बिल्कुल इसलिए द सही। प्री ऑडिट साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि थ्री लाइन्स ऑफ डिफेंस का मॉडल है। आईएए ने रिसेंटली एक डायरेक्टिव इशू किया जिसमें उसने आईएए थ्री लाइंस मॉडल का नाम दिया, डिफेंस हटा दिया, और जी, ऐसे ही। उन्होंने कहा आईएए मॉडल है थ्री लाइंस। उसमें क्या है, द ऑडिट इज द थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन ऑपरेशनल है, वो फेस कर रहा है बिजनेस को। सेकंड लाइन में कंप्लायंस के सारे फंक्शन, कंप्लायंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, जिस जिस सूरत हाल में, इवन फाइनेंस का कुछ पोर्शन है सेकंड लाइन में। थर्ड लाइन में ऑडिट है। ठीक है, तो थर्ड लाइन में जो ऑडिट है, कुछ जगहों पे हमें प्री ऑडिट करने सेकंड लाइन भी बनना पड़ता है। वन से चल रहा था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में, टेक्सटाइल अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज, वो ये एडिशनल ऑडिटिंग इन चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ठीक है, जो कि वो एक्टिव जो गैप एनालिसिस कर सकता है, जिसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता है, जो बीपीडी कर सकता है, जो बीपीआर करना जानता है। तो टेक्सटाइल में मैं ये देख रहा हूँ कि हम अग्रेसिवली, मैं पर्सनली और बहुत सारे मेरे हेड्स दोस्त जानने वाले, वो चाहते हैं कि प्रोसेस ऑडिटिंग की टीम्स उनके पास डेवलप हों, काफी उन्हें अच्छी डेवलप कर दी हैं, और मजीद टैलेंट भी ढूंढ रहे हैं। दिस इज समथिंग जहां पे एफएमसीजी और फार्मा हमें मदद कर सकते हैं। अगर वहां का टैलेंट हमारे पास आते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ स्कोप सर, फॉर यू आर इम्प्रूवमेंट। यू आर hunting talent. Do you think pharma textile industry is paying a good salary? आई थिंक इट्स पेइंग गुड सैलरी, पर्सनली आई थिंक इट इज। द कॉम्पेंसेशन बेनिफिट्स बहुत इंप्रूव हुआ है। अगर आप कभी भी मर्सर का सर्वे करेंगे, तो आपको टेक्सटाइल नीचे तो नजर नहीं आएगा। और मोर देन सैलरी, मैं कहता हूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज जो देखिए, सिंपल सी बात है कि एक, मैं पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया एफएमसीजी के हवाले से, कि हमारी जो टीम्स होती थी उसमें 5-8 लोग होते थे, मैक्सिमम 10 होते थे। वी डू नॉट हैव अ वेरी ह्यूज जो है ना ऑडिट डिपार्टमेंट। फाइनेंस लिमिटेड होता था, फाइनेंस में 30-32 लोग होते थे, हमारे पास मैक्सिमम 10 का पेरोल होता था। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि ऑडिट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो वो ऑडिट, हेड ऑफ ऑडिट रखा हुआ है, द फंक्शन इज आउटसोर्स टू द बिग फोर और समवन, और वो बेसिकली आके ऑडिट करते हैं, वो आके ऑडिट हेड को रिपोर्ट दे देते हैं, फिर वो अपने बोर्ड से फॉलो अप करता रहता है, उसके स्टेक होल्डर से डिस्कस करता रहता है। इन विद इन क्या कहते हैं, टेक्सटाइल आई वुड से कि एक रीजनेबल कंपनी के अंदर 25-30 ऑडिटर्स का हेडकाउंट कोई बड़ी बात नहीं है। 25-30 ऑडिटर, 3-4 मैनेजर्स, एक जीएम या हेड ऑफ ऑडिट, दिस इज वेरी नॉर्मल। और इवन ये होता है कि अगर वो इट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, तो ये भी पॉसिबल है कि स्पिनिंग में 8-10 बैठे हुए हों, डेनिम में या जो आपका फैब्रिक वाला है उसमें 10-15 बैठे हों, फिर गारमेंट्स में 15-20-25 बैठे हुए हों। तो जो हमारे पास हेड काउंट्स हैं, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हेड काउंट ऐसे ही नहीं है, वो काम इतना ज्यादा है कि हमें हेड काउंट की जरूरत है। फार्मा और एफएमसीजी में उसके करीब भी मैंने कभी नहीं देखा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एमएनसीज, और वो भी बहुत डिफरेंट तरीके का काम है, क्योंकि सारे की प्रायोरिटी ये कि आउटसोर्स करते हैं। इन हाउस ऑडिट डिपार्टमेंट जितने टेक्सटाइल में है, शायद किसी इंडस्ट्री में पाकिस्तान में अच्छा, ना हो। सर, इसमें एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा। इसमें कुछ जी जी हमारे पास जी जी न्यू ऐसे लोग भी हैं जो कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, मिड ऑफ द कैरियर है। तो एक जी जी मार्केट में ये भी चीज देखी जाती है कि जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो थ्रू आउट जी द जी जी कैरियर टेक्सटाइल में रहते हैं। तो ये भी एक बड़ा जी चैलेंज है, उनको दूसरी इंडस्ट्री या तो एक्सेप्ट नहीं करती, या उनके पास उसकी नॉलेज नहीं है। इसी तरीके से जब वो टेक्सटाइल में आना चाहते हैं तो समटाइम्स वो भी, उनको भी फेस करना होता होगा कि वी नीड अ रिसोर्स कि जिनका टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस हो। यू आर द लाइव एग्जांपल, जो एफएमसीजी से लीडरशिप रोल से लीडरशिप टेक्सटाइल में आए, दे एक्सेप्टेड यू, दे गिवन यू द जी 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 अपॉर्चुनिटी, और आपने जी उनको प्रूव जी भी किया। सो इस एस्पेक्ट को जरा कवर कीजिएगा कि ये कैसा है कि आइदर इट इज प्रैक्टिकल और नॉट। अच्छा, देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि एज विद इन द टेक्सटाइल, वी वैल्यू टेक्सटाइल प्रोफेशनल्स, टेक्सटाइल ऑडिट प्रोफेशनल हम वैल्यू करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उसका एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि द प्रोसेस इज डिफरेंट ना, वो प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग जिसको है, उसको एक एडेड एडवांटेज तो है। तो मैं उसको ना, ही इज लाइक अ, ही शी इज लाइक अ प्लग एंड प्ले, कि मैंने उसको लगाया और वो उस एक्टिविटी को करना शुरू कर देगा। और वो दूसरी जगह से बेस्ट प्रैक्टिस लेकर आ रहा है, तो हो सकता है वो मुझे एक दो चीजें ऐसी बताए जो मुझे आज नहीं आती।
सो दिस इज ए ऐसे वेरी वैलिड एडवांटेज, मैं कहूंगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप अगर जो टॉप आप उसको देखेंगे कंपनीज को, तो सुरती हो गया, यूनस हो गया, आर्टिस्टिक मिलियनर हो गया, एजीआई डेनिम हो गया, मुस्तकीम हो गया, फिरोज 1888 हो गया, नवीना हो गया, ये सारे जो बड़े हैं, इन सब में मूवमेंट बहुत कॉमन है। हर लेवल पे मूवमेंट बहुत कॉमन है। दे उनके एचआर डिपार्टमेंट्स अप्रिशिएट करते हैं ऐसा टैलेंट आए जो कि इन सब में से किसी में काम किया हो। और ये मैं बात करूं टॉप 10 की, टॉप 10 से नीचे आते हैं तो दे तो वो तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं कि आपने टॉप 10, एक तरह से जो बिग फोर का इम्पैक्ट है ना अकाउंटिंग में, कि जी जी बिग जी जी। फोर का बंदा है, उसी तरह अगर टॉप 10 में आप अच्छी जगह पे काम करके आए हो, वेदर इट इज इन कराची, वेदर इट इज इन लाहौर, उसकी पूरे पाकिस्तान में वैल्यू है, पूरे पाकिस्तान में वैल्यू है। और अब आप ये भी सुन रहे हैं कि भाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है टेक्सटाइल में, तो उनको भी वैल्यू होगा यहाँ के बंदे की, कि भाई टेक्सटाइल में एक्सपीरियंस इसने काम किया हुआ है, तो ही इस पे जो प्रीमियम होगा ना, वो देने के लिए वो तैयार होंगे कि इस बंदे को प्रीमियम दे दो, यहाँ पे फायदा होगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि ये विद इन टेक्सटाइल इंपॉर्टेंस है टेक्सटाइल रिसोर्स की, मैं इस बात को मानता हूँ। सेकंड थिंग इज कि जहां तक करियर मोबिलिटी की बात होती है, तो मैंने पर्सनली ये देखा, देखिए टेक्सटाइल इज पार्ट ऑफ एलएसएम, ठीक है। अब तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें पावर है, उसमें सीमेंट है, उसमें स्टील है, तो हम उनके बराबर हैं और कुछ जगहों पे उनसे ज्यादा है। तो इट इज वेरी कॉमन के जो टेक्सटाइल के रिसोर्स है इन सब में सर्कुलेट कर रहा हो, इट इज वेरी कॉमन, हर लेवल पे होता है। और वो बेसिकली यही देख रहे हैं कि आपने उस स्केल पे अगर काम किया हुआ है, मल्टी बिलियन रुपी में, अगर इनके आपने लेट से 50-60 बिलियन टर्नओवर से ऊपर काम किया हुआ है, तो यू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है। जिस शख्स ने ऐसी जगह काम किया जहां बिजनेस टर्नओवर ही 5-10 अरब रुपए है, वो रिलेट ही नहीं कर सकता कि 50 अरब रुपए से ऊपर टर्नओवर की जगह का चैलेंज क्या है और वहां कितनी एग्जैक्टली। स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है उस काम को करने के लिए। तो मैंने पर्सनली देखा है कि विद इन स्टील, पावर, सीमेंट, हर जगह हमारी मोबिलिटी बहुत कॉमन है। बहुत अच्छे प्रीमियम्स लोगों ने उठाए, 50-50% प्रीमियम्स पे गए हैं। तो विद इन टेक्सटाइल, आउटसाइड टेक्सटाइल, इस लार्ज स्केल के अंदर तो मोबिलिटी इज नॉट एन इशू फॉर मी। दैट्स अ जी गुड पॉइंट। आई जस्ट वांट टू ऐड कि जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है, जो मेरी भी मालूमात है कि टेक्सटाइल का टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। तो जिस कंपनी का टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, ऑब्वियसली दे हैव लार्ज बजट्स फॉर देयर डिपार्टमेंट। they can easily absorb the जी high salary or high paying person जो वो on board करते हैं, and they want the right talent on the top position, on the mid position, so that अग्री। अब वो इस चीज को समझ चुके हैं कि टैलेंट होगा तो ही हमारे ऑपरेशंस स्मूथ चलेंगे, अदरवाइज हम ही सर खुजाते रहेंगे और हमें ही परेशानी होगी। लेट द टेंशन, दिस टेंशन इज पास टू द प्रोफेशनल्स, वो इसको इजीली हैंडल कर लेंगे। एंड दैट्स द थिंग, दे आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल बनता है जी न्यू जॉइनर्स के लिए, मिड कैरियर के लिए, कि उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर ग्रो करना हो टू द लीडरशिप पोजीशन, लेट्स से मैं अगर हम्म। 5 इयर्स या 10 इयर्स अपना रोड मैप बनाऊं, आज मेरा मिड कैरियर है, 4 इयर्स 5 ईयर एक्सपीरियंस है, तो अब मेरी प्री ऑडिट में लेट्स से पोस्टिंग है, या मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ, या मेरी मशीनरी देख रहा है, कोई मुझे फुल फ्लैश प्रोसेस ऑडिट में नहीं हूँ, तो मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए टू रीच द लीडरशिप पोजीशन इन द लॉन्गर रन और शॉर्ट रन? ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आपकी जो प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस नॉलेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। हमने बात की करियर मोबिलिटी विद इन टेक्सटाइल पॉसिबल है, तो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आपको किसी प्रोसेस ऑडिटिंग रोल के लिए कंसिडर किया जाए दूसरी टेक्सटाइल में। पहले तो आपको विद इन अपनी टेक्सटाइल देखने की क्या अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल हैं, कितना वेल डेवलप्ड प्रोसेस ऑडिट फंक्शन है। कुछ जगहों पे ये भी होता है कि जो प्री ऑडिट का सीनियर रिसोर्स है, वही प्रोसेस ऑडिट फंक्शन खुद डेवलप करता है, उसको बोर्ड की तरफ से इजाजत होती है, हेड ऑफ ऑडिट सपोर्ट करता है, और फिर उसके बाद वो ऑन बोर्ड करके हो सकता है वो प्री ऑडिट से वहां मूव हो जाए। देखिए, इंडस्ट्री का फिलहाल ट्रेंड ये है कि हमारे पास प्री ऑडिट के रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, प्रोसेस ऑडिट के तकरीबन ना होने के बराबर। तो ऐसे ही। व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि हम लोग प्रोसेस ऑडिट के लोगों को के लिए लोगों को ऑनबोर्ड करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको हर चीज हैंड होल्डिंग करके उसको एक लेवल पे लेकर आ जाते हैं कि जहां पे वो रीजनेबली उस एक्टिविटी को मैनेज कर सकें, ठीक है। तो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जो अच्छा प्रोसेस ऑडिट रिसोर्स है उसको जो प्रीमियम मिल रहा है, वो कभी कभी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये रियलिटी है प्री ऑडिट और प्रोसेस ऑडिट की। दूसरी बात ये है कि देखें, इन आर कॉन्टेक्स्ट द रियल थिंग इज कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है।
For internal auditing perspective, what we've learned during the last 15 years, मैंने तो ये सीखा कि देयर इज अ ट्राइंगल, ठीक है? उस ट्राइंगल के टॉप पे भी नॉन निगोशिएबल, अगर उसको इस करियर में 10-15 साल गुजारने हैं तो सीआईए जरूर करे। सेकंड ट्राइंगल का कोना है सर आपकी वॉइस डिस्टॉर्ट हो रही है, थोड़ी देर के लिए बीच में एक थोड़ा सा गैप आता है एक जिसमें समझ आपकी लें वॉइस अंबार। डिस्टॉर्ट हो जाती है। जी, अभी आपको आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है, आप कंटिन्यू करें। जी, मैं कह रहा था कि देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स टू द ट्रायंगल। फर्स्ट इज सीआईए, सेकंड इज सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, थर्ड इज सीसा, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर। ठीक है, ये तीन स्किल्स में से कम एक से शुरुआत करके दूसरे को बिल्ड करना, तो कम से कम अगर 2 आउट ऑफ 3 हैं तो इसका मतलब है कि भाई यू आर वेल प्लेस्ड टू प्रोग्रेस विद इन द इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। और पाकिस्तान में आपके पास एक एज होगा, क्योंकि आम लड़का जो आ रहा होगा या तो वो सीएमए पार्ट क्वालिफाइड होगा, 10 या 12 पेपर निकले हुए होंगे, या वो एसीसी पार्ट क्वालिफाइड होगा, उसके 6 या 7 पेपर निकले हुए होंगे। जिस शख्स की एक सर्टिफिकेशन भी एडिशनल और आइडियली यूएस सर्टिफिकेशन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और वो मैनेजरियल पोस्ट और फिर उससे ऊपर एजीएम डीजीएम तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है, क्योंकि वो हर जगह उसके पास एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है। तो पार्ट एक्सपीरियंस एंड पार्ट एजुकेशन, जहां ये दोनों चीजें मिलती हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रेट ग्रेट, आई थिंक ये हर इंडस्ट्री के लिए है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ राइट क्वालिफिकेशन इन योर हैंड। फिर आपकी अप्रोच रिगार्डिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड फॉलो की जा रही हूँ, जैसे प्रोसेस ऑडिटिंग है, ऑडिट ऑटोमेशन की आपके पास नॉलेज हो, आप वर्कशॉप्स अटेंड करें, आप ट्रेनिंग दें, आप सेमिनार्स में जाएं, दैट आपकी अवेयरनेस हो कि एक्चुअली इंटरनल ऑडिट वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो बिल्कुल सही आपने इसको आइडेंटिफाई है। किया। एक और चीज जो कि अभी ग्लोबल फिनोमेना और कंपनीज कर रही हैं, बैंक्स तो काफी टाइम से कर रही हैं, ऑडिट ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, डाटा एनालिटिक्स की तरफ जा रही हैं, और काफी सारी और भी इंडस्ट्रीज इसमें काम कर रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि आप पीयर से भी कनेक्ट हैं, तो उसमें बताएं कि ऑडिट ऑटोमेशन और डाटा एनालिटिक्स, जिसको कंटिन्यूअस ऑडिटिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो जी वो जी किस जी। हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, हो चुका है, या लोग इसको अभी लर्न कर रहे हैं? अभी आप जो डायरेक्टर्स हैं उनको समझा रहे हैं उनकी अफवादियत कि सर ये सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो फायदा हो जाएगा, तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिट एंड द फर्स्ट इज ग्लोबल इंडस्ट्री फिनोमेना। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें ग्लोबल इंडस्ट्री ग्लोबल फिनोमेना, एटलीस्ट फॉर द टेक्सटाइल, तो आप ये देखेंगे पिछले 5 साल में जो मेजर ईआरपीस थे एसएपी और ओरेकल। ठीक है, तो मोस्ट टेक्सटाइल्स हैड ओरेकल मे बी 8 to 10 years अगो। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years जितनी एसएपी की इंक्लूजन टेक्सटाइल में है, शायद किसी सेक्टर में भी नहीं है, किसी सेक्टर में भी नहीं है। जितने यूज केस आज की तारीख में आपको टॉप 10 टॉप 15 टेक्सटाइल कंपनीज में मिलेंगे एसएपी के, वो किसी और इंडस्ट्री से मैच नहीं कर रहे। ये पहली दफा है कि एसएपी को अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि टेक्सटाइल इज द वे फॉरवर्ड, कि अगर हमने इनको ऑटोमेट कर दिया, इनके ऑपरेशन हमने अपने ईआरपी पे लेकर आ गए, तो कल को जो है ना हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट होगी। ठीक है, क्योंकि हर एक ये देखता है कि टॉप 10 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो उनको फॉलो करती है, तो बाकी फिर टॉप 30 टॉप 40 हैं वो सब उनको फॉलो करेंगे। तो अभी आपको ये फिनोमेना बहुत ज्यादा नजर आएगा। ऑरेकल फ्यूजन भी हालांकि लॉन्च हुआ है, मगर ऑरेकल फ्यूजन की अभी वो सक्सेस नहीं है जो कि एसएपी का एस फॉर हाना की है। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अच्छा, सेकंड चीज जो है, फिलहाल देखें हर जगह एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इन 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 कराची इन पाकिस्तान, हमारे पास जो है ना वो स्पेसिफिक ऑडिट सॉफ्टवेयर जैसे टीममेट हो गया, जैसे एसीएल हो गया, ऑडिट कमांड लैंग्वेज, इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये ट्रेंड थोड़ा बहुत एमएनसीज में है, लोकल इंडस्ट्री में इतना ज्यादा फैला नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अगर कुछ प्लेयर्स उसमें आगे आगे हों तो अलग बात है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि लोकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इन सब की सपोर्ट यूएई में आमतौर पर एग्जिस्ट करती है, तो ये आपको ये कहते हैं हम वहां से आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। डायरेक्ट पाकिस्तान में ऑफिसेज नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या है, और हम अपनी कंपनी को कंपनी समझती भी है, हर अच्छी कंपनी समझती है कि हमें ऑडिट के टूल्स अच्छे लेने हैं।
अंदर या तो जो आपके पास लेट से हमारे पास एक ऑप्शन हम उसको ले लें। दूसरा तरीकेकार ये है कि टीममेट जैसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेशनल है या एसीएल है उसको हम इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। अभी फिलहाल ऑडिट जो विद इन टेक्सटाइल फोकस ये कर रहा है कि जो ईआरपी के अपने जो है ना कंट्रोल एनवायरनमेंट के सॉफ्टवेयर हैं या मॉड्यूल्स हैं, हम उन पे फोकस करें, उनको इम्प्लीमेंट करें और उनके थ्रू चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश करें और अपनी एक्शंस को ऑटोमेट करें। अच्छा, इसमें एक और एडवांटेज ये है कि टेक्सटाइल के अंदर जो आईटी फंक्शंस है वो भी बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं। जैसे मेरी जो पिछली कंपनी थी सूटी, उसमें एडवांटेज ये था कि हमने अपना एक होम ग्रोन जो है वो इंटरनल ऑडिट मॉड्यूल बनाया था, जिसमें हमारी टोटल ऑडिट रिपोर्टिंग उसके ऊपर हमने शिफ्ट कर दी थी और उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ लिंक कर दिया था। तो जैसे ही हम लोग एनसी लेवल के ऊपर चीजें बनाते थे, वो एनसी डायरेक्ट उस ईमेल आईडी से ट्रिगर्ड थी कि वो वहां पे चली जाती थी और वहां से जवाब अपडेट हो जाता था हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास क्योंकि अच्छे बड़े आईटी फंक्शंस हैं, हम इस तरह के सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो हम दोनों करें, वी हैव कस्टमाइज सॉफ्टवेयर एंड जिस तरह से हमारे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं उस तरह से हम उनके भी जीआरसी स्वीट्स को इस्तेमाल करें। तो इट इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ। ग्रेट। आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन द लीडरशिप एज वेल कि जो टीम इसको लेके चल रही है, लेट्स से कि फाइनेंस में सीएफओ है, सप्लाई चेन के हेड है, अब वो अपने डिपार्टमेंट में कितना टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं, कितना यूज करना चाहते हैं, कितने यूज केसेस हैं उनके पास, चाहे वो पास में किया हुआ उन्होंने खुद लर्न किया हुआ हो या उनकी अपनी इंसाइट्स हो, तो वो एक डेवलप करा सकते हैं और इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सो जी बिल्कुल बिल्कुल। वेल एक्सप्लेन्ड। इसको हम बस अभी कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस, दोज हैव अपॉर्चुनिटीज इन द मल्टीपल इंडस्ट्री, अगर किसी के पास एफएमसीजी हो या टेक्सटाइल में हो या टेलीकॉम में, तो उसमें एक होता है ना प्रेफरेंस, लाइक्स, पर्सनल लाइक्स एंड हम्म डिसलाइक्स सेट असाइड। तो व्हाट डू यू थिंक के हम्म। उसको किस तरीके से इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए अगर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उसके पास हो इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज? अच्छा, इसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि देखें, बीइंग चाहे फाइनेंस हो या ऑडिट प्रोफेशनल हो, एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि वी आर फ्लूइड, वी कैन मूव बिटवीन इंडस्ट्रीज, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस, वी आर नॉट लिमिटेड। हम डिस्ट्रीब्यूशन 3PL में भी काम कर सकते हैं, हम एफएमसीजी में भी कर सकते हैं, फार्मा में भी कर सकते हैं, हम रिटेल में भी कर सकते हैं, टेक्सटाइल में भी कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर फ्लूइड, तो आपकी जो करियर ग्रोथ है दैट विल बी ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। उसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि लेट्स से डेनिम का एक बंदा है जो कि लेट्स से एग्जांपल मैं देता हूँ वीविंग में है। अब वो बंदा जो है ना, उसके पास डेनिम वीविंग के अंदर कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे मूव कर सकता है। ठीक है, जैसे लेट्स से इफ ही इज इन सूटी, वो आर्टिस्टिक जा सकता है, वो डेनिम ई जा सकता है। ठीक है, बहुत कम आपके पास ऑप्शन है जहाँ वो मूव कर सकता है। तो उस वजह से प्रोडक्शन के अंदर मैं ये कहूंगा कि जो वेदर इट इज फार्मा, वेदर इट इज एनीवेयर एल्स, जो प्रोडक्शन वाले हैं दे आर लिमिटेड बाय देयर इंडस्ट्री एंड द स्पेसिफिक जॉब अपॉर्चुनिटीज दे हैव। ऑडिटर्स का ये मसला नहीं और ना ही फाइनेंस प्रोफेशनल्स का है। तो अगर हम फ्लूइड हैं, इफ यू रेडी टू एक्सप्लोर, अगर हमें चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की आदत है, तो हम हर जगह जा सकते हैं, वी आर नॉट कंस्ट्रेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि मैंने ये देखा है मुख्तलिफ जगहों पे कि टेक्सटाइल में भी मैंने चीज नोटिस की है कि बहुत सारे लोग ना एक कंफर्ट में चले जाते हैं, एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उनको आदत हो जाती है एक तरह के काम की। तो वो 5-10 साल तक ना वही काम करते रहते हैं और वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही सीट पे बैठे रहते हैं। अच्छा, टेक्सटाइल में क्या एडवांटेज है कि इफ समबडी केम एज एन ऑफिसर, तो वो ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी दमखम है तो वो 5 से 6 साल में पहुंच सकता है। अच्छा, जब वो सीनियर मैनेजर बन जाता है तो वो कहते हैं मैं तो ऑडिट ऑफिसर के तौर पे स्टार्ट किया था, तो मैं तो बहुत अच्छा हो गया। तो अब वो एक्सप्लोर नहीं करता, वो शायद ये समझता है कि अगर वो टेक्सटाइल में ही ग्रो हुआ है तो शायद वो ये समझता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटीज कहीं और नहीं मिलेंगी। तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी जगह पे बैठा रहूं। और वो हो सकता है 5-8 साल उसी जगह पे बैठा रहे, और अगर कहीं किसी ने पैसे थोड़े ज्यादा ऑफर कर दिए तो शायद वो चला जाए। तो अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलने को तैयार हैं, तो आप अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, खासतौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मूव कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई फील पर्सनली। वेल एक्सप्लेन्ड। और यही थॉट्स है बेसिकली। ये होता है कि जब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर वो मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करते, और जब कुछ जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ती है, इट्स वेरी हार्ड देयर फॉर देम टू फाइंड अ जॉब।
क्योंकि उनका जो स्किल सेट है वो ऑब्सोलीट हो चुका होता है, तो उनके लिए मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। वी आर जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन, और जस्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है किसी ऑडियंस का related to the stakeholders. So governance, textile industries, where there are very few companies which are textile and listed on the stock exchange. Stock exchange में being listed, there we can assume कि governance बेहतर होगी. तो if we see the landscape in Pakistan, प्राइवेट कंपनी ज्यादा है, तो ओनर मैनेज बिजनेसेस ज्यादा है, तो दायरा ऑडिटर्स को डिफिकल्टीज होती हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को कम्युनिकेट करना, जस्टिफाई करना, और अनइम्प्लीमेंटेड ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एक्शन मैनेजमेंट का हो, इसके ऊपर उनको फोर्स करना, कन्विंस करना। सो इस एस्पेक्ट में आप बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खास तौर पे क्या चैलेंजेस हैं। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप यूं सोचें कि एक जनरेशन, नई जनरेशन टेक ओवर करी है बहुत सारी जगहों पे। देयर वाज अ जनरेशन जो कि 80s 90s में उन्होंने परवान चढ़े, उन्होंने वो ब्रांड्स बिल्ड किए जिनमें आज हम काम कर रहे हैं। ठीक है, 90s से पहले वो ब्रांड्स नहीं थे, उस वक्त डिफरेंट प्लेयर्स थे, आज डिफरेंट प्लेयर्स हैं। अब वो हैंड ओवर करें नेक्स्ट जनरेशन को, विच इज मेनली देयर सन्स एंड डॉटर्स, एंड फिर बोर्ड पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन है एक्सटर्नल उसकी भी। तो इस सिचुएशन के अंदर व्हाट इज हैपनिंग इज कि अब वो लोग आ रहे हैं जो कि फॉरेन एजुकेटेड हैं या लोकली यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज में एजुकेट होकर आए हैं, और उनको कंट्रोल गवर्नेंस की वो अंडरस्टैंडिंग है जो आप पढ़कर आए हैं। तो वो खुद भी चाहते हैं कि उस रिसोर्स को ऑन बोर्ड करें जो कि बोर्ड्स को एम्पावर करे, जो कि ऑडिट कमिटी को फेस कर सके, जो कि वो प्रोसेस ऑडिटिंग और वो वैल्यू एडिशन ऐड कर अच्छा दे। तो ये एक चेंज ओवर का बहुत खूबसूरत वक्त है। तो पिछले 5-8 साल मैंने पर्सनली दिखे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर आगे पीछे, कि यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं कि नई चीजें आए। जैसे एआई है, एआई इनिशिएटिव्स को हमने पिछले 2-3 साल में जिस तरह से अग्रेसिवली फॉलो किया है, इस तरह से हम शायद किसी टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बोर्ड्स और जो नए ओनर्स हैं, जो नए बिजनेस ओनर्स हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा टैलेंट हो जो कि नई चीज लेकर आए। एज एग्जाम्पल है, फर्ज करें कि प्री ऑडिट का कल्चर है, प्री ऑडिट की ऑब्जर्वेशन एक सिमिलर किस्म की ऑब्जर्वेशन है। अब उसमें आपने बताया जी डॉक्यूमेंटेशन एडिक्वेट नहीं है, या आपने कहा अप्रूवल ये नहीं है, तो सेठ सेठ के बच्चे और डिफरेंट बोर्ड मेंबर्स ये चीजें 25-30-40 साल से सुनते आए हैं। उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। असल तो ये है कि आप ये बताएं कि जी फला मॉड्यूल के अंदर ये कंट्रोल वीकनेस है, इसको सरकमवेंट किया जा सकता है, ये फ्रॉड पॉसिबल है, इसके लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एसओडी ये अप्लाई करेंगे तो ये कंट्रोल स्ट्रेंथन होगा। अगर आपकी जो भी एनसीए वो इस लेवल पे है और रूट कॉज एनालिसिस इस लेवल पे है, तो बोर्ड्स आपको अटेंशन देंगे। और अगर आप वही रूटीन की रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं जो कि फाइलों के थद्दे हैं, जो कि 30-30 40-40 पेज की रिपोर्ट है, तो वो तो हर एक ही बना रहे हैं ना। असल बात तो ये कि आप कम वक्त में मच्योर डैशबोर्ड के थ्रू अपनी रिपोर्टिंग करके अपनी एनसीए समझा सकते हैं नहीं। अगर समझा सकते हैं तो देर इज अ विलिंग सीईओ और बोर्ड विच इज सिटिंग ऑन टॉप, जो कि आपकी बात सुन के उसके ऊपर अमल करने को तैयार है, मगर दे नीड दैट इनपुट। अब आपके ऊपर है कि आप वो इनपुट दे सकते हैं या नहीं। वेल एक्सप्लेन महमूद साहब, ग्रेट डिस्कशन। और जस्ट एट दिस पॉइंट वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। काफ़ी सारी इंसाइट्स मिली हैं मुझे भी पर्सनली, और ऑब्वियसली होपफुली ऑडियंस को भी मिली होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, तो रिकॉर्डिंग आई विल बी ईमेलिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका आंसर शुरू के सेशन में हो चुका है, तो हम वी आर नॉट रिपीटिंग दैट क्वेश्चंस अगेन। तो थैंक यू फॉर योर टाइम महमूद साहब, और आई होप के ऑडियंस के लिए ये रिकॉर्डिंग फ्यूचर के लिए भी बेहतर रहेगी, दे विल बी लर्निंग। इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, यू कैन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन डीएम हिम एट हिज कन्वीनियंस, ही विल बी रिस्पॉन्डिंग टू एवरीवन। तो थैंक यू महमूद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक We यू, will be connected in थैंक यू, future for any थैंक यू future फॉर योर sessions, टाइम, inshallah. प्लेजर टू बी हियर। इंशाल्लाह। Thank you. Jazakallah. इंशाल्लाह, Best थैंक यू of वेरी luck मच। for your ओके, टेक company केयर, and for अल्लाह your हाफिज। internal audit department. Allah Hafiz. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।